Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to discuss summary for writing task 1 academic students. So guys, you know report writing है academic students के लिए, कैसे report writing में summary लिखनी है, कौन सा paragraph है, कितने word होने चाहिए, every single thing I'll be explaining you in today's video. But before starting, please subscribe my channel if you're watching it for the first time, and if you have been watching for a long time, thanks a lot for your love and appreciation guys. Before starting, I would definitely like to give credit to one of my employees. Her name is Manpreet because she has written all this. So definitely credit उसे जाता है. So अब start करते हैं, क्योंकि मनप्रीत का नाम मैंने नहीं लिया, पिछली 3 वीडियोस में भी लिखवाया है. अगर आज भी नहीं लिया तो उसने बाद में लिखना नहीं है, that's why. चलिए स्टार्ट करते हैं. जोक्स अपार्ट गाइज, यहाँ पे हम समरी की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो समरी में व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग गाइज, कि समरी होता है आपका लास्ट पैराग्राफ. ओके, सो व्हेन वी आर राइटिंग टेबुलर चार्ट या फिर पाई चार्ट, तभी हम इस तरीके की समरी यूज करेंगे. फर्स्ट थिंग इज विल बी यूजिंग दीज. The way I have written this summary, we can use summary like such only in tabular chart and pie chart. Why so? Because tabular chart में भी definite figures होती हैं and pie chart में भी definite figures या percentage होती है. However, if I am comparing it with bar graph and line chart, so what is happening? Line graph and bar graph, so वहाँ पे आपका बिल्कुल ऐसा नहीं रहता, वो movement होती रहती है. So you're not sure about a particular unit, so you're not sure what exactly is there. You're not sure whether it 0.5, 0.6 और 0.7. somehow वो line fluctuate हो रही है, but आपको नहीं पता चल रहा है. if it's between here, then you will not be sure what exactly is it. so point is this, but यहाँ पे definitely उन्होंने बताना है like 670, 320, 140. So here they have given you some data and that too some definite number only. So that's the only reason. इसी के लिए हम ऐसा कुछ यूज करेंगे. फॉर बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट आई विल मेक सेपरेट वीडियो wherein I'll explain how to write summary for the same. So this is only for tabular chart and pie chart. अब talking about number of words, when it's about summary, how many words should you write? I'll recommend you to write somewhere around 30 words. So exact length should be somewhere around 25 to 30 words. मोर देन इनफ गाइज, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. 25 to 30 वर्ड्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेंथ है फॉर समरी. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, जब भी हम कोई भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, हाउ मेनी पैराग्राफ्स डू वी नीड? वी नीड टोटल ऑफ 4 पैराग्राफ्स एक्सेप्ट process chart and flow chart where we don't need summary. Otherwise in each and every report writing we need summary, ठीक है, except these two. So what do I need to do? This will be written in the last paragraph. So we have total of 4 paragraphs. First is introduction, second is content, paragraph 1, which is the first explanation. Then second body paragraph is content, paragraph 2, which is the second explanation, and then the last one is summary. Here we do not write conclusion, it is summary only. So we can just start it like this only. In summary, ticket prices. अब what I am explaining here, firstly I need to explain you about the tabular chart. What exactly is here in this tabular chart? Guys, there was a tabular chart wherein वहाँ पे उन्होंने क्या करा हुआ है, आपको टाइम बताया हुआ है पहले टोटल कि what exactly is there, कि 6 AM, 6, 8 AM, 10, 12 PM, 2, 4, 6, 8, 10 अगेन. सो वो हर एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, AM था यहाँ पे, देन AM, और हर एक टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा हुआ है, आपको बताए हुए फिगर्स. पहले बताए हुए नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने, फिर बताए हुए कॉस्ट पर टिकट. सो लेट्स से नंबर ऑफ पैसेंजर हैं 670, ठीक है, अलग अलग रेट्स बताए हैं, ठीक है, नंबर्स बताए हैं. इट्स 670 हेयर, इट्स 640 हेयर, इट्स लेट्स से 470 हेयर. सो वो यूजुअली वो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द टिकट प्राइसेस. यहाँ पे टिकट प्राइस ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा हैं, ठीक है. यहाँ पे भी टिकट प्राइस ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा हैं, ठीक है, 22 हेयर इट इज़. यहाँ पे भी टिकट प्राइस यहाँ थोड़ा सा कम होगा बिकॉज इट्स 470, सो लेट्स से 18 है. यहाँ पे भी अगेन दिस, बट 6 o'clock पे जाके पैसेंजर्स तो बहुत ज़्यादा थे, समवेयर अराउंड 700, बट जो फेयर था वो खाली 19 था.
ओके, सो इस तरीके से एक टेबुलर चार्ट है वेयर दे हैव एक्सप्लेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स and the cost per ticket, okay, and that too in a tabular chart form. 2 hours की duration में span में explain करा हुआ है. 6 o'clock, 8 o'clock, 10 p.m, 10 a.m, 12 p.m, 2, 4, 6, 8, 10 में explain करा हुआ है. So इस तरीके की summary कैसे लिख सकते हो? In summary, टिकट प्राइसेस, अब यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट टिकट प्राइसेस, ठीक है. सो ये टिकट प्राइसेस का बता रहे हैं. इन समरी टिकट प्राइसेस इंक्रीज, अब ये प्राइसेस है इसलिए इंक्रीज आया, अगर प्राइस होता तो इंक्रीजेज आता. टिकट प्राइसेस इंक्रीज ब्रॉडली इन लाइन विद मतलब इक्विवेलेंट टू, कि जितना आपके फेयर इंक्रीज हो रहे हैं टिकट प्राइसेस उतने इंक्रीज हो रहे हैं जैसे कि पैसेंजर ट्रैफिक है. नंबर ऑफ पैसेंजर के अकॉर्डिंग ही टिकट प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में तो टिकट प्राइस भी इंक्रीज है. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग. सो इंक्रीज ब्रॉडली इन लाइन का मतलब है इक्विवेलेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. सिंक है उन दोनों का साथ में, इन लाइन विथ पैसेंजर ट्रैफिक, ठीक है. एक्सेप्ट, अब कह रहे हैं इसके अलावा, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर. 6 o'clock जो था हमारा इवनिंग रश आवर था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर थे. एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर व्हेन दे एक्चुअली फॉल. अब क्या फॉल हुआ है? व्हेन द प्राइसेस के लिए, टिकट प्राइसेस के लिए व्हाट हैव दे यूज? दे हैव यूज दिस प्रोनाउन फॉर टिकट प्राइसेस. एंड दिस इज सम एग्जाम्पल फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक ओनली. I'll recommend guys कि जब भी आप summary लिख रहे हो it should be clear and crisp. What is there in a perfect summary? So it should explain the highest point, the lowest point. अब here they are talking about highest, lowest. Okay, but here what is the major thing? What exactly is the major thing and what is the thing which you really need to consider? So major यहाँ पे हो क्या रहा था? Throughout the span what was happening that we need to tell. So throughout the span what was happening? In summary, ticket prices increase broadly in line with passenger traffic. तो summary में ticket prices जो थे वो increase हो रहे थे जैसे जैसे passenger traffic increase हो रहा था. 670, 640 उसी के according increase हो रहे थे. Except during the evening rush hour. अब उन्होंने एक major exception भी यहाँ add कर दिया है कि इस वाले time पे नहीं हो रहे थे. Except during the evening rush hour जहाँ पे passengers तो ज़्यादा थे but ticket prices फॉल हुए थे when they actually fall. So this is more than enough when it comes to summary. word limit भी पूरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So it's like how many words have we written? 21 words, ठीक है. मैं भी आपको बोल रही हूँ 25 to 30. So I'll just recommend guys कि more than enough है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. try to write only 25 to 30 वर्ड्स. यहाँ पे 21 है, that's also good क्योंकि मैं अपना हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. द सेम थिंग विल हैपन विद पाई चार्ट. मुझे मेन ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट राइटिंग विल एक्सप्लेन द ट्रेंड विच इज प्रिवेलेंट. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन द ट्रेंड एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग सम एक्सेप्शन विच इज गोइंग ऑन देयर, कि क्या मेजर एक्सेप्शन है, उसी के बेसिस पे विल बी राइटिंग. एंड इंट्रो एंड कंक्लूजन सिमिलर नहीं होता. देयर इज अनदर वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, सो उसके थ्रू आपको पता चलेगा. बट नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, टेबुलर चार्ट और पाई चार्ट के लिए विल बी यूजिंग सच summary. ओके, ठीक है. एंड इट इज द लास्ट पैराग्राफ. Make it a point that you leave one line after every single paragraph. This is more than enough guys. इसके बेसिस पे आप ज़रूर लग सकते हो, ठीक है. आई वॉन्ट गाइज कि अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन इवन राइट समरी एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू देयर. ओके, सो यहाँ पे समरी का एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ गया. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट को, बट जब आप 2-3 बार ऐसे लिखोगे सो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. आपको पता होगा कि मैंने इसी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है. बट अब ये है खाली 2 चीज़ों के लिए. आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो फॉर बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, कि बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में कैसे समरी लिखनी है, क्योंकि समरी हर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, हर एक रिपोर्ट राइटिंग के अकॉर्डिंग डिफर करेगी. अगर डायग्राम है तो डिफरेंट होगी, अगर बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ है तो डिफरेंट होगी. बट प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो चार्ट में वी विल नेवर राइट समरी. मेक इट अ पॉइंट. दिस इज समथिंग इट शुड बी देयर in your mind that you will never write summary for
process chart and flow chart. So guys, this is more than enough when it comes to summary for writing task 1, tabular and pie chart. So I believe सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छी तरह. If you really liked the video, please press the like button, and if you have any doubts, ask me in the comment section. I'll definitely answer each and every doubt of yours. And guys, I'll recommend, if you're unable to write summary properly, I'll recommend you to read some sample answers, but I'll just advise कि go through only Cambridge books, because that is the only authentic material जिसके basis पे आपको कभी भी कोई भी problem नहीं आएगी. So that's all for today guys. Thank you so much for watching my video. Thanks a lot.